Hello students, welcome to my channel. In this series of lecture, we have already started the subject Digital System Design. So, in this subject, we have already taken one lecture, and in the first lecture, we have studied about the number system, and also we have studied about the conversion between those number system. In today's lecture, we will study about the binary codes. So students, it's my request to all, if you have not studied the first lecture, then you should go through it because that is a very important chapter. And if you want to listen and to know and to understand the number system conversion in details, then you can also go in my playlist BEE, that is Basic Electrical and Electronics Engineering, because in that subject, in the unit 5, I have explained the number system conversions with lots of examples. So if you want to understand it in better sense, then you can go for it. Okay, so let's start with today's topic. Today's topic is binary codes. So first of all, before starting this lecture, I would like to tell you that why we are going to study about the binary codes. So students, in digital systems represent and manipulate not only binary number but also many other discrete elements of information. Any discrete element of information distinct among a group quantities can be represented by a binary code. So actually what happens in the digital world, we not only have binary numbers and the decimal numbers in the सिस्टम. जैसे हम कंप्यूटर्स की जब बात करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हमें सिर्फ नंबर से डील करना पड़ता है, बल्कि नंबर्स के अलावा भी बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, जैसे लेटर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं. और आजकल तो कंप्यूटर की वर्ल्ड जो है, हमारा डिजिटल वर्ल्ड जो है, वो इतना आगे बढ़ चुका है कि आज तो इमेजेस भी होते हैं, सिग्नल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वॉइस एंड मैनी अदर टाइप ऑफ सिग्नल्स आते हैं. इसलिए हमको जो है बाइनरी कोड्स की ज़रूरत पड़ती है. So, binary codes play an important role in digital computers. The codes must be in binary because computers can only hold zeros and ones. तो as we already know कि computers जो होते हैं वो सिर्फ binary digits को समझ पाते हैं, इसलिए जो भी हमारे binary codes भी होंगे ये हमारे binary numbers या binary digits के उस फॉर्म में ही होंगे, because computer can only understand the language of zeros and ones. So, it must be realized that binary codes merely changes the symbols, not the meaning of the elements of information that they represent. So क्या होता है, binary codes हम पढ़ने तो जा रहे हैं, लेकिन we should realize it that it merely changes the symbol. वो सिर्फ symbol change करता है किसी भी information का, वो उसकी meaning को नहीं बदलता है. ओके, सो वी शुड रियलाइज दैट द बाइनरी कोड्स merely changes the symbols, not the meaning of the elements of information that they represent. सो बाइनरी कोड स्टार्ट करने से पहले एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको रियलाइज़ करानी चाहिए. देन अब जब हम बाइनरी कोड के बारे में पढ़ेंगे तो एक और टर्म है जो हमारे सामने आएगी, दैट इज़ अ बिट. बिट के बारे में इससे पहले भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा और वो जानते होंगे कि व्हाट इज़ अ बिट. स्टिल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी शॉर्ट sentence that a bit by definition is a binary digit. Okay, so bit जो होता है BIT, bit जो है, जो हमारा bit है, that is actually binary digit. Okay, so when used in conjunction with a binary code, it is better to think of it as denoting a binary quantity equal to 0 or 1. ठीक है, एक बिट की जब हम बात करते हैं, सिंगल बिट की, तो वो या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है. ठीक है, टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ 2⁻n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स. अगर मैं बात करती हूँ कि मुझे टोटल जो है वो 2⁻n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है यूजिंग बाइनरी कोड्स, तो हमको टोटल नंबर ऑफ कितने बिट्स लगेंगे किसी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए. वील रिक्वायर n बिट्स टू रिप्रेजेंट any one number. क्यों? Because it is possible to arrange n bits into 2⁻n distinct ways. I know थोड़ा सा confusing लग रहा होगा आपको, मैं आपको फिर से explain करती हूँ कि जब भी हमको 2⁻n एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना हो बाइनरी कोड में, तो हमको टोटल नंबर ऑफ बिट जो यूज़ करनी पड़ेगी किसी भी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने में, वो होगी n. क्यों? क्योंकि जब n नंबर ऑफ़ बिट्स हमारे पास होंगी तो हम उसको 2⁻n टाइप्स में डिस्टिंक्ट वेज में जो है अरेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि अगर हम बात करते हैं कि हमको जो है टोटल नंबर ऑफ़ जो हमारे
एलिमेंट्स हैं वो एग्जाम्पल हमारे जो हैं वो 4 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे 4 हैं, तो इसका मतलब हमारी n की वैल्यू क्या हुई 2 टू द पावर 2, ठीक है। तो इसका मतलब हमको टोटल नंबर ऑफ़ बिट्स कितने लगेंगे, 2 लगेंगे। तो अब जैसे अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ़ बिट्स जो होंगे वो 2 होंगे, तो कैसे हो सकते हैं, या तो वो 0 0 हो सकता है, या तो वो 0 1 हो सकता है, या तो वो 1 0 हो सकता है, और या वो 1 1 हो सकता है। तो आपने देखा कि टोटल नंबर ऑफ़ बिट्स अगर हम 2 यूज़ कर रहे हैं तो उसको रीअरेंज करने का या अरेंज करने का जो हमारा टोटल नंबर ऑफ़ डिस्टिंक्ट वेज है वो क्या है, 2 रेज़ टू द पावर 2, है ना। तो सिमिलरली अगर हमको अगर हमने टोटल 8 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है, यानी 2 टू द पावर 3, यानी हमको इस समय कितने बिट्स लेने पड़ेंगे, 3 बिट्स लेने पड़ेंगे। अब 3 बिट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 0 0 0 0 1, ठीक है, फिर 0 1 0, फिर 1 0 0, ठीक है, 0 1 1, ठीक है। इस तरीके से हम जो है वो 8 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं इन 3 बिट्स के। ओके, सो आई होप आप लोग को अभी समझ में आ गया होगा कि वाई आई एम सेइंग दैट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ 2 raised to the power n distinct elements in a binary code we require a minimum n bits. This is because it is possible to arrange n bits in 2 to the power n distinct ways. Okay, so this was about the binary code. Here is a short definition of the binary code. We will just read this definition because we have already I have already explained about the binary codes. So in the coding, when numbers, letters or words are represented by a specific group of symbols, it is said that the number, letter or word is being encoded. The group of symbols is called as a code, and the digital data is represented, stored and transmitted as group of binary bits. This group is called as the binary code, and the binary code is represented by the number as well as the alphanumeric letter. ठीक है, तो अभी अल्फ़ा न्यूमेरिक लेटर की अभी तक हमने बात नहीं की है, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स भी जो हैं वो हमारे पास हैं, उसके बारे में भी हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो नाउ कम्स द एडवांटेज ऑफ बाइनरी कोड्स। तो बाइनरी कोड्स के एग्जाम्पल या एडवांटेजेस क्या क्या हो रहे हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो फॉलोइंग इज़ द लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस दैट अ बाइनरी कोड ऑफर्स। ऑलरेडी मैंने आपको जो अभी एक्सप्लेन किया है उसमें एडवांटेजेस कवर हो चुके हैं, बट फटाफट वील रीड दिस advantages. So first advantage is binary codes are suitable for the computer applications. We already know this. Binary codes are suitable for the digital communication. हाँ, तो बाइनरी कोड्स जो हैं वो डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज़ होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की डेट में हम बहुत सारे कम्युनिकेशन करते हैं। वी इवन सेंड द इमेजेस, वी इवन सेंड द वीडियोज़। तो ये जो वीडियोज़ और इमेजेस भी हैं ये भी बाइनरी कोड्स के फॉर्म में ही जाती है, ठीक है। सो बाइनरी कोड्स मेक द एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग ऑफ डिजिटल सर्किट्स इफ़ वी यूज़ द बाइनरी कोड्स, ठीक है। तो then since only 0 and 1 are being used, implementation becomes easy, ठीक है। अब बात आती है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ बाइनरी कोड्स की। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बोलूँ तो अगर इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो अ कोड इज़ अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। द बिट कॉम्बिनेशन आर रिफर्ड टू एज कोड वर्ड्स, है ना। So there are many different coding schemes, each having some particular advantages and characteristics. One of the main efforts in coding is to standardize a set of universal codes that can be used by all, ठीक है। So the classification of binary codes are here। आपको जो है यहाँ पे स्क्रीन पे क्लासिफिकेशन दिख रहा है कि बाइनरी कोड्स को हम कितने टाइप्स में जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है वेटेड कोड्स, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। देन नॉन वेटेड कोड्स, then binary coded decimal code, then the alphanumeric codes and the error detecting and error correcting codes. So students, एरर डिटेक्टिंग एंड एरर करेक्टिंग कोड्स जो है वो थोड़ा आपको शायद अट्रैक्ट किया होगा अपनी तरफ कि ये किस टाइप के कोड्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एरर डिटेक्टिंग और एरर करेक्टिंग कोड्स जो है वो हम कम्युनिकेशंस में यूज़ करते हैं, और आपका एक सब्जेक्ट है डिजिटल कम्युनिकेशन जो आपको आने वाले सेमेस्टर्स में होगा। उस सेमेस्टर में आप जो है उस सब्जेक्ट में आप इन कोड्स को, एरर डिटेक्टिंग कोड्स और एरर करेक्टिंग कोड्स को काफ़ी अच्छे से काफ़ी डीप में पढ़ने वाले हैं। सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। Okay, so today we will focus on the weighted codes, non-weighted codes and binary coded decimal and the numeric codes basically. So we will start with the weighted codes. तो weighted codes नाम से कुछ समझ में आ रहा है, कुछ आप गेस कर सकते हो कि weighted codes क्या होगा। हाँ, तो in weighted binary codes each position of a number represents a specific weight.
है ना. The bits are multiplied by the weights indicated and the sum of these weighted bits gives the equivalent decimal digit. ठीक है. तो जैसे कि अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा तो उस समय हमने बाइनरी नंबर्स को पढ़ा था, बाइनरी नंबर सिस्टम को पढ़ा था. तो उस पर अगर कोई एक नंबर हमको दिया है, फॉर एग्जांपल 010, तो इस नंबर का हम जो है इसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते थे, हम सिंपली 2 to the power 0, 2 to the power 1 एंड 2 to the power 2, ये हमने बताया था कि ये इसके पर्टिकुलर वेट्स होंगे, है ना. और इस वेट के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा आंसर जो है वो 2 आता है, जो इसका डेसिमल डिजिट है. ठीक है. तो वेटेड नंबर जो होगा, ये वेटेड बाइनरी कोड्स जो हैं वो भी बहुत सिमिलर हैं इससे, क्योंकि इन वेटेड बाइनरी कोड्स ईच पोजीशन ऑफ अ नंबर रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक वेट. तो जैसे हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में पढ़ा था कि वहाँ पे एक स्पेसिफिक वेट होता है, या हम जो डेसिमल नंबर सिस्टम में भी हमने पढ़ा है कि वहाँ पे एक स्पेसिफिक वेट होता है, वैसे ही वेटेड बाइनरी कोड्स में जो होगा वो स्पेसिफिक वेट होगा हमारे पर्टिकुलर डिजिट्स का. और उन पर्टिकुलर डिजिट को जब हम उसके वेटेड वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उस पूरे टोटल डिजिट का जब हम सम करेंगे, जैसा कि हम बाइनरी नंबर सिस्टम में करते थे, तो जो हमें डेसिमल नंबर मिलेगा दैट इज़ द इक्विवेलेंट डेसिमल डिजिट. ठीक है. हमने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा है, सो वी हैव बीन फैमिलियर विद द बाइनरी नंबर सिस्टम. तो सबसे पहला जो बाइनरी स्ट्रेट बाइनरी कोड्स के मतलब जो वेटेड बाइनरी कोड्स हैं उसका एग्जांपल मैं आपको दूंगी, दैट इज़ द स्ट्रेट बाइनरी कोड. ठीक है. स्ट्रेट बाइनरी कोड. तो स्ट्रेट बाइनरी कोड क्या होता है? स्ट्रेट बाइनरी कोड इज़ अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ डेसिमल नंबर बाय इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट. ठीक है. तो स्ट्रेट बाइनरी कोड एक मेथड है जो रिप्रेजेंट करती है किसी भी डेसिमल नंबर को उसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर से. तो बाइनरी नंबर सिस्टम तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा ही है. तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरा नंबर जो है वो 0 है, तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है? 0 0 0. ठीक है. अगर मैं बात करूँ कि 1 है तो हमारा इसका बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 0 0 1. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो 1 है, यहाँ पे जो हमारा 3 डिजिट्स नंबर है उसमें वेट्स कैसे होंगे? 2 to the power 0, 2 to the power 1 और 2 to the power 2. जब हम पर्टिकुलर डिजिट्स को उसके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनका सम करेंगे तो हमको इक्विवेलेंट नंबर मिलेगा, दैट इज़ 1, और वही हमारा इक्विवेलेंट डेसिमल डिजिट है. सिमिलरली अगर मैं बोलती हूँ कि एग्जाम्पल अगर 2 की बात करूँ तो 2 को हम लिखेंगे 0 1 0, क्योंकि जब हम इसके इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 to the power 0, 2 to the power 1 एंड 2 to the power 2. तो हमारा जब हम इसको सम करेंगे हमारा आंसर आएगा 2. तो ठीक है. तो एक हमारा जो पहला वेटेड बाइनरी कोड का एग्जाम्पल है या वेटेड बाइनरी कोड्स का जो पहला हमारा टाइप है दैट इज़ स्ट्रेट बाइनरी कोड्स. ठीक है. अब सेकंड जो है हमारा बाइनरी कोडेड डेसिमल. तो अभी हमने जब इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ा था तब मैंने आपको बाइनरी कोडेड डेसिमल का भी जो है वो जिक्र किया था. तो बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या होते हैं? बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है वो भी एक प्रकार से एक वेटेड कोड होते हैं. ठीक है. तो पहले हम यहाँ पे जो हमारी स्क्रीन पे डेफिनेशन है उसको एक बार पढ़ के और अच्छे से समझ लेते हैं अबाउट द बाइनरी वेटेड बाइनरी कोड्स के बारे में. सो वेटेड बाइनरी कोड्स आर दोज बाइनरी कोड्स विच ओबे द पोजिशनल वेट प्रिंसिपल. ईच पोजिशन ऑफ द नंबर रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक वेट. सेवरल सिस्टम्स ऑफ द कोड्स आर यूज टू एक्सप्रेस द डेसिमल डिजिट 0 through 9. इन दीज कोड्स ईच डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स. तो अब मैंने आपको जो अभी बताया स्ट्रेट बाइनरी कोड उसमें हमने 3 बिट्स की बात की थी. तो ऑब्वियसली अगर हम 3 बिट की बात करते हैं तो हम टोटल कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगे? मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास 3 बिट्स हैं तो यानी हम 2 to the power n नंबर्स को जो है वो शो कर पाएंगे. तो 2 to the power n यानी यहाँ पे 2 to the power 3 यानी हो जाएगा 8, यानी हम 0 से 7 को सिर्फ जो है वो रिप्रेजेंट कर पाएंगे. तो स्ट्रेट बाइनरी कोड्स में हम सिर्फ 0 से 7 के नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेकिन अगर हमको 0 से 7 ना करके 0 से 9 करना होगा तो हमें मिनिमम कितना यूज़ करना पड़ जाएगा? हमें मिनिमम नंबर ऑफ़ बिट्स जो है वो 4 यूज़ करने पड़ जाएंगे. ठीक है. तो अब 4 बिट यूज़ करने पे क्या होगा हमारा? अगर हमारे बोलते हैं हम 4 बिट होंगे तो 0 0 0 0. तो इसमें हमारे वेट क्या हो जाएंगे? इसका वेट होगा 1, इसका वेट होगा हमारा 2, इसका वेट होगा 4 और इसका वेट होगा हमारा 8. कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स? कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँ. अगर मैं 4 डिजिट नंबर की बात कर रही हूँ दैट इज़ जैसे मैंने बोला 0 0 1 0. ठीक है. तो इसका हमारा वेट होता है 2 to the power 0, इसका 2 to the power 1, इसका 2 to the power 2 एंड इसका 2 to the power 3. इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो इसका वेट हो जाएगा हमारा 1 बिकॉज 2 to the power 0 इज़ 1, 2 to the power 1 इज़ 2,
2 to the power 2 इज़ 4 एंड 2 to the power 3 इज़ 8। इसलिए मैंने यहाँ पे जो है ये जो आपको फिगर दिख रहा है इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने 8, 4, 2 और 1 की बात की है। क्यों? क्योंकि 8, 4, 2, 1 जो है इसका बेस है। तो अगर हमें 24 को यहाँ से डेसिमल से बाइनरी कोडेड डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना होगा तो हम 4 को अलग से इसके 4 डिजिट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, 2 को अलग से इसके 4 डिजिट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे एंड फिर उसको हम लिख देंगे। तो इसका आंसर होगा 0 0 1 0 0 1 0 0। ठीक है, तो दिस इज़ द बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, तो अगेन आई विल एक्सप्लेन बाइनरी कोडेड डेसिमल। इन बाइनरी कोडेड decimal codes, individual decimal digits are coded in binary notation and are operated upon singly. Thus binary codes represent on 0 to 9 decimal digits and therefore all BCD codes have at least 4 bits. अब आपको एक चीज़ और शायद ध्यान में आई होगी, बहुत से स्टूडेंट्स को ध्यान में आया होगा कि अगर हम बाइनरी कोडेड डेसिमल में सिर्फ 0 से 9 नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम नंबर ऑफ़ बिट्स जो यूज़ कर रहे हैं 4, तो नंबर ऑफ़ बिट्स जो 4 है उसको हम अरेंज कर सकते हैं 2 to the power 4 डिस्टिंक्ट वेज में। यानी हम टोटल कितने टाइम्स कितने वेज में उसको डिस्टिंक्ट वेज में उसको अरेंज कर सकते हैं 16 वेज में। तो सिंपल है, अगर हम 0 से 9 यूज़ कर रहे हैं मतलब हम सिर्फ 10 यूज़ कर रहे हैं, तो बाकी के जो 6 हमारे अरेंजमेंट्स हैं, जो 6 डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स हैं वो एक्चुअली अनयूज्ड है और इसलिए हम उनको अनयूज्ड कोड्स भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं आपको बाइनरी कोडेड डेसिमल की बात करूं तो बाइनरी कोडेड डेसिमल में अगर हम एग्जांपल लेते हैं 3, 6 और 4, तो इसको अगर हमें बाइनरी कोडेड डेसिमल में बदलना है तो 4 को हम अलग से बाइनरी कोडेड डेसिमल में करेंगे, तो जैसा यहाँ पे दिया ही हुआ है 0 1 0 0। 6 को हम अलग बाइनरी कोडेड डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ 0 1 1 0 एंड देन 3 को हम अलग जो है बाइनरी कोडेड में करेंगे, दैट इज़ 0 0 1 1। तो हमारा फाइनल जो इसका आंसर होगा दैट विल बी 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0। ओके, सो अब आपको अगर कभी कन्वर्जन आता है किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी कोडेड डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, सो आई होप आप लोग इजीली कर पाएंगे। 8 4 2 1 याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो वेट होता है। देन विल गो फॉर नॉन वेटेड कोड्स। अब नॉन वेटेड कोड्स क्या होता है? जब वेटेड कोड समझ में आ गया तो नॉन वेटेड कोड्स जो है वो तो काफ़ी इजी होगा आपके समझने के लिए, बिकॉज दीज कोड्स आर नॉट पोजिशनली वेटेड, है ना। ये वेटेड से एकदम अपोजिट होंगे। वेटेड कोड्स में क्या होता था कि हमारे पास हर पोजीशन का एक वेट होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, दीज कोड्स आर नॉट पोजिशनली वेटेड। दिस मीन्स दैट ईच पोजिशन विद इन अ बाइनरी नंबर इज़ नॉट असाइंड अ फिक्स्ड वैल्यू, है ना। और इसके कुछ एग्जांपल्स में आता है हमारा एक एक्सेस 3 कोड और दूसरा एग्जांपल हमारा आता है ग्रे कोड, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वी कैन ओनली जस्ट रीड द definition which is written in the screen, that in this type of binary codes the positional weights are not assigned and the examples of non weighted codes are access 3 code and the gray code। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं access 3 codes की। तो access 3 codes जो है वो बहुत ही सिंपल होता है। the access 3 code is also called as XS3 code। इट इज़ नॉन वेटेड कोड, जैसा कि अभी मैंने बताया, यूज़ टू एक्सप्रेस डेसिमल नंबर। ये भी जो है वो डेसिमल नंबर्स को ही एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है। द एक्सेस 3 कोड वर्ड्स आर डिराइव फ्रॉम 8421 BCD कोड, यानी एक्सेस 3 कोड को हमें डिराइव करने के लिए BCD कोड का इस्तेमाल करना होता है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, जो भी हमारा BCD कोड है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि हम BCD कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे किसी भी डेसिमल नंबर को, तो उस BCD कोड में हमको सिंपली जो है एक्सेस 3 की वैल्यू क्या है BCD कोड में 0 0 1 1, है ना। तो उस एक्सेस 3 का मतलब क्या है, 3 ज़्यादा। तो हमें क्या करना है, BCD कोड में उस एक्सेस 3 वैल्यू को यानी 3 को ऐड कर देना है, तो हमको उसका एक्सेस 3 कोड मिल जाएगा। तो अगर आपको डेसिमल नंबर से एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करने के लिए आता है तो आपको पहले उसको BCD कोड में कन्वर्ट करना है एंड देन इन दैट BCD कोड यू नीड टू जस्ट ऐड 0 0 1 1 एंड यू विल गेट द एक्सेस 3 कोड। ठीक है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया गया है। सो आई होप आपको एक्सेस 3 कोड भी समझ में आ गया होगा। देन कम्स द ग्रे कोड। अब ग्रे कोड क्या वाला है ना। तो ग्रे कोड जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये भी जो है एक नॉन वेटेड कोड है। सो देर आर एप्लीकेशंस इन विच इट इज़ डिज़ायरेबल टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल एज वेल एज अदर इंफॉर्मेशन विद अ कोड that changes in only one bit position from one code word to the next adjacent word। This class of code is called unit distance code और इसको हम cyclic code या reflective code या grey code भी कहते हैं। ठीक है, तो हम ग्रे कोड को और किस किस नाम से बुलाते हैं, रिफ्लेक्टिव कोड या फिर साइक्लिक कोड या यूनिट डिस्टेंस कोड। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी एडजेसेंट हमारे
जो डिजिट्स होंगे, मतलब जो भी एडजेसेंट वैल्यूज़ होंगी, उन दोनों एडजेसेंट वैल्यूज़ के बीच में सिर्फ एक सिंगल बिट का डिफरेंस होगा। तो जैसे कि आप इस टेबल पे देख सकते हैं कि अगर हम एडजेसेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इन दोनों के बीच में देखते हैं तो सिर्फ एक बिट चेंज हुई है, इन दोनों के बीच में बात करते हैं तो सिर्फ एक बिट चेंज हुई है। तो हमारा क्या होगा, सॉरी यहाँ मैं BCD में आपको शो कर रही थी, ग्रे की बात कर रहे थे हम। तो अगर हम इन दोनों के बीच में बात करेंगे तो सिर्फ एक बिट चेंज हुई है, जब हम इन दोनों के बीच में बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक बिट चेंज हुई है। तो एडजेसेंट जो डिजिट्स होते हैं उसमें सिंगल बिट चेंज होता है, ठीक है, जो कि हमारा BCD कोड में नहीं था। तो इसके एक अपने एप्लीकेशंस हैं। तो जैसे कि हम इसमें रीड कर सकते हैं, इट इज़ द नॉन वेटेड कोड एंड इट इज़ नॉट अर्थमेटिक कोड, दैट मीन्स देयर आर नो स्पेसिफिक वेट असाइंड। ये तो बात हो चुकी है। इट हैज़ अ वेरी स्पेशल फीचर दैट ओनली वन बिट विल चेंज ईच टाइम द डेसिमल नंबर इज इंक्रीमेंटेड एज शोन इन फिगर। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि दो एडजेसेंट नंबर्स के बीच में सिर्फ सिंगल बिट का डिफरेंस होगा जो चेंज हुई होगी, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। अब ग्रे कोड की एप्लीकेशंस क्या है? ग्रे कोड इज़ पॉपुलरली यूज इन द शाफ्ट पोजीशन एनकोडर्स एंड द शाफ्ट पोजीशन एनकोडर प्रोड्यूस द कोड वर्ड विच रिप्रेजेंट्स द एंगुलर पोजीशन ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। तो ये उसके एप्लीकेशंस हो गए। अब बाइनरी कोडेड डेसिमल इसमें दिया है। बाइनरी कोडेड डेसिमल मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक छोटा सा चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर हमको बाइनरी नंबर को ग्रे में कन्वर्ट करना है, अगर हमें बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे? तो इसका 2 स्टेप होते हैं इसमें। सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि जो भी बाइनरी नंबर हमको मिला है उसके टॉप लेफ्ट में, यानी जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है जिसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं, वहाँ पे हमको 0 ऐड करना है सबसे पहले, और उसके बाद हमको लेफ़्ट से राइट जाना है और XOR गेट को लगाना है। तो XOR गेट मैंने आपको समझाया था और अभी अगर मैंने अपने BEE वाले सब्जेक्ट में समझा चुका है। अगर आपको उसमें कोई डाउट हो तो आप देख सकते हो, बाकी मैं अभी आपको बता देती हूँ। XOR जो गेट होता है उसमें अगर हम 2 इनपुट यूज़ करते हैं और दोनों इनपुट्स अगर डिफरेंट हो, जैसे 0 1 हो या 1 0 हो, तो उसका जो आउटपुट आता है वो 1 आता है, और अगर दोनों सेम हो या लाइक 1 1 या 0 0 तो आउटपुट 0 आता है, ठीक है। तो XOR गेट में क्या होता है, आउटपुट हमारा 1 आता है जब दोनों इनपुट जो हो वो डिफरेंट हो, और 0 आता है अगर दोनों इनपुट सेम हो। तो ये तो हो गई XOR गेट के बारे में बात। अब हमें पढ़ना क्या है, बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट करना। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि सिंपल, अगर हमको एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 1 0 1, ठीक है, 0 0 1 0, ठीक है। तो सबसे पहले काम मैंने क्या बोला कि पहले स्टेप में हमको इसके लेफ्ट मोस्ट पे एक 0 को ऐड कर देना है। तो हमने यहाँ पे एक 0 ऐड किया, ठीक है। अब इस 0 को ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो एडजेसेंट है उनके बीच में हम XOR गेट लगाए। जैसे 0 1 के बीच में XOR गेट लगाया 1, फिर ये 1 और 0 के बीच में XOR गेट लगाया 1, फिर 0 और 1 के बीच में लगाया 1, 1 और 0 के बीच में लगाया 1। अब यहाँ पे दोनों 0 हैं, दोनों इनपुट 0 आएंगे तो आ जाएगा 0, ये फिर 0 और 1 है तो 1, एंड 1 और 0 है तो 1, ठीक है। तो ये जो हमारा है, दिस इज़ द ग्रे कोड ऑफ दिस बाइनरी नंबर, ठीक है। तो बाइनरी से ग्रे कोड में करने के 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप, हमको लेफ्ट मोस्ट में 0 ऐड करना है, एंड देन हमें एडजेसेंट लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है और दो वैल्यूज़ को लेते हुए उसमें एक्सोरिंग करनी है, और हमारा जो है हम बाइनरी से ग्रे में ईजिली कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। सो ये वैसे जनरली एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने ग्रे कोड पढ़ा है तो आई थिंक बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर और अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर और एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर, वी शुड नो दिस। इफ वी आर स्टडिंग अबाउट द ग्रे कोड्स देन वी शुड know about the simple steps to convert binary code to a grey code, ठीक है। अब बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD कोड की बात आ रही है। BCD कोड के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, है ना। 8421 का हमारा इसमें वो चलता है, इसमें मेरे को दोबारा आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम फटाफट जो है इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन दिस कोड ईच डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ 4-bit बाइनरी नंबर दैट एज ऑलरेडी टोल्ड। BCD इज़ अ वे to express each of the decimal digits with a binary code. In the BCD with 4 bits we can represent 16 numbers, but in BCD code only first 10 are used. मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो बाकी होती है उनको हम invalid और unused codes कहते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ BCD कोड्स। तो एडवांटेजेस ऑफ BCD कोड्स है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू डेसिमल सिस्टम, वी नीड टू रिमेंबर बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 होती है। फिर डिसएडवांटेज क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के डिफरेंट रूल्स हो जाते हैं इसमें। BCD अर्थमेटिक जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है,
ठीक है, तो ये सारे से कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब बात आती है हमारी अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स की। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स क्या होते हैं? ठीक है, सो फॉर द इनहेरेंटली बाइनरी वर्ल्ड of the computer, it is necessary to put all symbols, letters, numbers, etc. into binary form. The most commonly used alphanumeric code is the ASCII code or ASCII code, that is ASCII code. तो अल्फ़ान्यूमेरिक कोड जैसा कि आपने देखा ही है कि हम कंप्यूटर्स में जो यूज़ करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं. वी यूज़ द वर्ड्स, वी यूज़ द सिम्बल्स, वी यूज़ द इक्वेशंस, मैनी थिंग्स, है ना. तो ऐसे कोड्स के लिए हमको अल्फ़ान्यूमेरिक कोड्स की ज़रूरत होती है. और जो सबसे ज़्यादा कॉमन अल्फ़ान्यूमेरिक कोड है इज़ दी ASCII कोड, और इसको हम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज भी कहते हैं. उसके अलावा जो सेकंड कोड है हमारा वो है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड. ठीक है, तो ये हमारा EBCDIC, ये हमारा दूसरा कोड है अल्फ़ान्यूमेरिक कोड में जिसको यूज़ किया जाता है. सो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में इन दोनों के बारे में जो है मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो ASCII क्या होता है? द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज़ द स्टैंडर्ड अल्फ़ान्यूमेरिकल कोड फॉर कीबोर्ड and a host of other data interchange tasks. Letters, numbers and single key stroke commands are represented by a 7-bit word. तो ASCII में हम क्या करते हैं? 7-bit कोड को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो मैं फिर से इसको रिपीट करती हूँ. द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज़ द स्टैंडर्ड अल्फ़ान्यूमेरिक कोड फॉर कीबोर्ड्स एंड अ होस्ट ऑफ अदर डेटा इंटरचेंज टास्क. यानी ये कीबोर्ड्स के लिए जनरली यूज़ होता है. इसमें हम लेटर्स, नंबर्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं, बहुत सारे ऐसे कमांड्स होते हैं जो हमारे कीबोर्ड में हमको दिखते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं. और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 7-बिट यूज़ करते हैं. 7 बिट्स हम यूज़ करते हैं. अब बात आती है हमारी EBCDIC, दैट इज़ एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड. तो इस कोड में हम 8 बिट यूज़ करते हैं. ASCII में हमने 7 बिट यूज़ किया था. इसमें EBCDIC में हम 8 बिट अल्फ़ान्यूमेरिकल कोड को यूज़ करते हैं. और ये जनरली जो है एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है IBM के द्वारा. ठीक है, सो द एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, दैट इज़ EBCDIC, इज़ एन 8-bit alphanumeric code which has been extensively used by IBM in its mainframe applications. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बाइनरी कोड्स, है ना. तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख भी रहे हैं, EBCDIC इज़ यूज प्राइमरली इन लार्ज IBM कंप्यूटर्स. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बाइनरी कोड्स. मैंने आपको बाइनरी कोड्स के बारे में बताया. मैंने आपको बताया वेटेड कोड क्या होते हैं, नॉन वेटेड कोड क्या होते हैं. फिर वेटेड कोड में मैंने आपको स्ट्रेट बाइनरी कोड बताया. मैंने आपको फिर BCD यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल्स के बारे में बताया. फिर हमने नॉन वेटेड कोड्स के बारे में पढ़ा. नॉन वेटेड कोड्स में हमने XS3 कोड और ग्रे कोड के बारे में पढ़ा. हमने बाइनरी कोड से XS3 कोड में और बाइनरी कोड से ग्रे कोड में कन्वर्जन भी आज सीख लिया. एंड उसके बाद हमने अल्फ़ान्यूमेरिकल कोड को पढ़ा. और अल्फ़ान्यूमेरिक कोड्स में जो 2 इंपॉर्टेंट कोड्स हैं, दैट इज़ ASCII, दैट इज़ ASCII एंड EBCDIC, हमने इन दोनों के बारे में भी जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ा. इसके अलावा जो हमारे 2 कोड्स और हैं, दैट इज़ द एरर डिटेक्टिंग एंड एरर करेक्टिंग कोड्स. ये आपके डिजिटल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे. इसका सिंपल ये है कि जो एरर डिटेक्टिंग और एरर करेक्टिंग कोड्स हैं वो हमारे जनरली डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं, जिसमें एरर डिटेक्टिंग कोड से हम एरर फाइंड आउट कर सकते हैं कम्युनिकेशन के बीच में, और करेक्टिंग कोड से हम एरर को करेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट today's lecture. Thank you so much. अगर आपको कोई भी डाउट हो, you can comment in the comment section, and also you can message me in the email ID which is given at the end of this lecture. So students, you can connect me anytime. So thank you so much for watching this lecture.